ایک غیر متوقع دریافت 1829 میں ایک فوجی بھگوڑا جس کا نام جیمز لوئس تھا قانون سے بچ کر بھاگ رہا تھا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے اس نے اپنا نام بدل کر چارلز میسن رکھ لیا اور بر صغیر کے وسیع علاقوں میں نکل پڑا۔ لیکن میسن کوئی عام مفرور نہیں تھا، وہ ایک شوقیہ ماہر آثار قدیمہ، سکوں کا ماہر اور ماضی کے راز جاننے کا بے حد متجسس انسان تھا۔ پنجاب کے میدانوں میں گھومتے ہوئے وہ ایک وسیع اور قدیم کھنڈر تک پہنچا جسے مقامی لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اس نے اس جگہ کا نام ہڑپا رکھا۔ کھنڈرات کے درمیان اسے چھوٹی مگر عجیب اشیاء ملی، مہریں جن پر ایک نامعلوم رسم الخط کندہ تھا۔ اس نے اپنی دریافت کو قلم بند تو کر لیا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جدید دور کا پہلا شخص بن چکا ہے جس نے 3000 سال سے زیادہ عرصے سے گمشدہ ایک تہذیب کے آثار دیکھے تھے۔ تقریباً ایک صدی تک میسن کی دریافت ایک معمہ ہی بنی رہی۔ برطانوی ہندوستان کی تاریخ میں اسے صرف ایک چھوٹا سا حوالہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر 1920 کی دہائی میں سر جان مارشل، جو اس وقت آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل تھے، انہوں نے اس مقام کی باقاعدہ کھدائی کا حکم دیا۔ تقریباً فوراً ہی ایک اور عظیم مقام دریافت ہوا جو ہڑپا سے تقریباً 590 کلومیٹر جنوب میں دریائے سندھ کے کنارے واقع تھا۔ مقامی لوگ اسے موئنجو دڑو کہتے تھے، یعنی مردوں کا ٹیلا۔ جیسے جیسے کھدائی گہری ہوتی گئی، دنیا پر ایک حقیقت واضح ہوتی گئی۔ ہندوستانی برِ صغیر میں بھی ایک عظیم قدیم تہذیب موجود تھی جو مصر اور میسوپوٹیمیا جیسی طاقتور تہذیبوں کے برابر کھڑی تھی۔ ڈاکٹر عظمیٰ رضوی، ماہر آثار قدیمہ۔ اس مقام کا رقبہ تقریباً 250 ہیکٹر یعنی 600 ایکڑ سے زیادہ ہے۔ یہاں تقریباً 40,000 لوگ رہتے تھے اور بعض اندازوں کے مطابق یہ تعداد 60,000 تک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تھی وادی سندھ کی تہذیب کی دریافت، ایک کانسی دور کی تہذیب جو اپنے عروج پر مصر اور میسوپوٹیمیا دونوں سے بھی زیادہ وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تقریباً 10 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل تھی، جو آج کے پاکستان اور بھارت کے بڑے حصے پر محیط تھا۔ ایک ایسا شہر جس کا کوئی بادشاہ نہیں۔ موئنجو دڑو اور ہڑپا میں جو کچھ ماہرین آثار قدیمہ کو ملا، اس نے تاریخ کو دوبارہ لکھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ صرف پرانے شہر نہیں تھے، یہ شہری منصوبہ بندی کے حیرت انگیز شاہکار تھے۔ جہاں زیادہ تر قدیم شہر بے ترتیب طریقے سے بنے تھے، وہاں وادی سندھ کے شہر پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت بنائے گئے تھے۔ شہر گرڈ سسٹم پر بنے تھے۔ اہم سڑکیں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب کی سمت میں تھیں، اور بعض سڑکیں 10 میٹر تک چوڑی تھیں۔ ہر اینٹ، چاہے وہ کسی عظیم سرکاری عمارت میں استعمال ہوئی ہو یا کسی عام گھر میں، ایک معیاری سائز میں تیار کی جاتی تھی۔ ان کا تناسب تھا 1 2 4۔ لیکن ان کی سب سے حیران کن کامیابی زمین کے نیچے تھی۔ وادی سندھ کے لوگوں نے دنیا کا پہلا شہری نکاسی آب کا نظام بنایا۔ تقریباً ہر گھر میں تھا ذاتی کنواں، نہانے کی جگہ، بیت الخلا۔ گندا پانی مٹی کے پائپوں اور اینٹوں کی بنی نالیوں کے ذریعے سڑکوں کے ساتھ بہایا جاتا تھا۔ ان نالیوں کو اینٹوں سے ڈھانپا جاتا تھا تاکہ صفائی آسان ہو۔ اس درجے کی صفائی کا نظام دوبارہ دنیا میں رومی سلطنت کے عروج تک نہیں دیکھا گیا، یعنی تقریباً 2000 سال بعد۔ ان شہروں کے مرکز میں ایک حیرت انگیز عمارت تھی۔ موئنجو دڑو میں اسے گریٹ باتھ کہا جاتا ہے۔ یہ باریک اینٹوں سے بنا ایک بڑا آبی حوض تھا جسے قدرتی تارکول سے بند کیا گیا تھا۔ اسے قدیم دنیا کا سب سے پرانا عوامی پانی کا تالاب سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جوناتھن مارک کینوئر، ماہر آثار قدیمہ۔ گریٹ باتھ ایک شاہکار ہے۔ یہ تقریباً 12 میٹر لمبا، 7 میٹر چوڑا اور 2.5 میٹر گہرا تالاب ہے۔
इसके साथ कपड़े बदलने के कमरे थे, पानी में उतरने के लिए सीढ़ियां थीं और पानी भरने और निकालने का पेचीदा निज़ाम था। ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, ये रूहानी तत्हीर और मजहबी रसूमात की जगह थी। ये हमें बताती है कि पानी इन लोगों के लिए मुक़द्दस था। लेकिन इन अजीम शहरों में एक अजीब राज भी है। यहाँ बादशाहत के कोई आसार नहीं मिलते, न अजीम महल्लात, न सोने से भरे शाही मकबरे, न किसी ताकतवर हुक्मरान की यादगारें। मिस्र में फिरौन थे, मेसोपोटामिया में जंगजू बादशाह, लेकिन वादी सिंध में हुक्मरान जैसे गायब ही हैं। डॉक्टर जीन मैकिंटॉश, माहिर आसार कदीमा। यही वादी सिंध की तहजीब का सबसे बड़ा मुअम्मा है। इन शहरों की तामीर और हज़ारों किलोमीटर तक ईंटों के मयार को यकसा रखने के लिए एक मजबूत मरकजी निज़ाम ज़रूरी था। लेकिन हमें कोई बादशाह नहीं मिलता। सबसे बड़ा घर भी दूसरे घरों से सिर्फ थोड़ा बड़ा है। ये जाहिर करता है कि शायद ये मुआशरा किसी मुतलकुल अनान हुक्मरान के बजाय इज्तिमाई निज़ाम के तहत चलता था। मुमकिन है ये बुजुर्गों की मजलिस या ताजरों की काउंसिल के जरिए चलाया जाता हो। ये एक ऐसी तहजीब थी जो फर्द के बजाय मुआशरे को तरजीह देती थी। ताजिर और एक नाकाबिले फहम रस्मुल खत। अगर वादी सिंध में जंगजू बादशाह नहीं थे जो फतूहात के जरिए खजाने भरते, तो फिर इस तहजीब की मईशत किस चीज पर चलती थी? इसका जवाब था तिजारत। वादी सिंध के लोग इंतहाई माहिर ताजिर थे। उनकी जुग्राफियाई पोजीशन बहुत अहम थी। उन्हें लकड़ी, मादनियात और जरखीज जमीन तक रसाई हासिल थी। उन्होंने दूर दराज इलाकों के साथ तिजारत की, हत्ता कि मेसोपोटामिया के शहरों के साथ भी। मेसोपोटामिया के लोग इस सरजमीन को मिलोहा कहते थे। डॉक्टर रीटा पी राइट, माहिर आसार कदीमा। इनकी तिजारत के शवाहिद बेशुमार हैं। हमें मेसोपोटामिया के शहरों में वादी सिंध की मोहरें मिली हैं और वादी सिंध के शहरों में मेसोपोटामिया की अशिया। वो तिजारत करते थे, लकड़ी, हाथी दांत, अफगानिस्तान से आने वाला कीमती पत्थर, लापिस लाजुली। लेकिन इनकी सबसे अहम चीज थी कपास। वादी सिंध के लोग दुनिया के पहले लोगों में शामिल थे जिन्होंने कपास की काश्त की और कपास के कपड़े बनाए। ये कपड़ा इतना बारीक और कीमती था कि इसे कदीम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों तक फरोख्त किया जाता था। इस वसी तजारत को मुनज़्ज़म करने के लिए वो एक पुरस्रार निज़ाम इस्तेमाल करते थे। ये था वादी सिंध का रस्मुल खत। चार्ल्स मेसन को जो छोटी मोहरें मिली थीं और बाद में मिलने वाली हजारों मोहरें, इन पर जानवरों की खूबसूरत तस्वीर बनी होती थीं। यकसींग जानवर, बैल, हाथी और इनके ऊपर कुछ अजीब अलामतें कुंदा होती थीं। डॉक्टर अस्को पारपोला, इंडोलॉजिस्ट। वादी सिंध के रस्मुल खत में तकरीबन 400 मुख्तलिफ अलामात मौजूद हैं। हम जानते हैं कि ये इंतज़ामी और तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होती थीं, शायद सामान की मलकियत जाहिर करने के लिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि 150 साल की तहकीक के बावजूद दुनिया के बेहतरीन माहिरीन भी इसे पढ़ने में नाकाम रहे हैं। हमें यह भी मालूम नहीं कि ये किस ज़बान की नुमाइंदगी करता है। ये कांसे दौर का आखिरी बड़ा नाकाबिले फहम रस्मुल खत है। ये मोहरें हमें कुछ बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास रोजेटा स्टोन जैसा दो लिसानी मतन नहीं है, इसलिए वादी सिंध के लोगों की आवाज़ आज भी खामोश है। हम उनके नाम नहीं पढ़ सकते, उनकी दुआएं नहीं जानते, उनकी कहानियां नहीं समझ सकते। हम उनके शहर तो जानते हैं, मगर उनके ख्यालात नहीं। एक पुरअमन सल्तनत। जब हम दूसरी कदीम तहजीबों को देखते हैं तो उनकी तारीख ज़्यादातर जंगों में लिखी गई है। मिस्री यादगारें दुश्मनों को शिकस्त देने के मनाजिर से भरी हैं। मेसोपोटामिया के बादशाह अपनी खूनरेज फतूहात का जिक्र करते हैं, लेकिन वादी सिंध की तहजीब एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती है। डॉक्टर ग्रेगरी पोसल, माहिर आसार कदीमा। वादी सिंध के पूरे फ़न में हमें अभी तक जंग का एक भी मंजर नहीं मिला। ना लड़ाई के मनाजिर, ना कैदियों को बांधने की तस्वीर, ना दुश्मनों को कुचलते बादशाह। उनके हथियार जैसे तीर, कमान और नेज़े बहुत सादा थे और गालिबन शिकार के लिए इस्तेमाल होते थे। उनके पास जेरिको जैसे बड़े किले या दीवारें भी नहीं थीं। ऐसा लगता है कि ये तहजीब गैर मामूली हद तक पुरअमन मुआशरा थी। उनका फ़न भी इसी बात की अक्कासी करता है। वादी सिंध की सबसे मशहूर चीज़ एक छोटा सा कांसी का मुजस्समा है जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है। ये मुजस्समा मोइंजोदड़ो से मिला था।
डॉक्टर न्यानजोत लाशरी मुआलिख। ये धातकारी का शाहकार है। एक नौजवान लड़की पूरे एतमाद के साथ खड़ी है, एक हाथ कमर पर, सर ऊंचा, लंबी टांगे, उसके बाजू पर चूड़ियां हैं जो तकरीबन पूरा बाजू ढांप लेती हैं। वो कोई देवी नहीं, ना कोई मलिका, वो एक आम इंसान है। ये मुजस्समा बताता है कि इस तहजीब के लोग इंसानी जिंदगी और शख्सियत को अहमियत देते थे। ये अमन और खुशहाली तकरीबन 700 साल तक कायम रही। वादिय सिंध एक ऐसी सरजमीन थी जहाँ थे साफ पानी, मुनज़्ज़म सड़कें, मसरूफ बाजार, लेकिन तकरीबन 1900 क़ब्ल मसीह के बाद हालात बदलने लगे। ज़वाल का मामला। वादिय सिंध की तहजीब अचानक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुई। 1800 क़ब्ल मसीह तक बड़े शहर खाली होने लगे, मयारी वज़न और पैमाइश का निज़ाम ख़त्म हो गया, तहरीर का इस्तेमाल रुक गया, लोग मशरिक़ की तरफ गंगा के मैदानों की तरफ हिजरत करने लगे, शहर वीरान हो गए और सदियों बाद वो सिर्फ मिट्टी के टीले बन गए, वही टीले जिन्हें चार्ल्स मैसन ने दरियाफ्त किया था। लेकिन सवाल ये है, ये सब क्यों हुआ? एक ज़माने तक सबसे मशहूर नज़रिया था हमला। 1940 की दहाई में माहिर आसार कदीमा मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा कि शुमाल से आने वाले आरियाई कबाइल ने इन शहरों को तबाह कर दिया। व्हीलर ने मोइंजो-दड़ो में मिलने वाले कुछ ढांचों को इस बात का सबूत करार दिया, लेकिन जदीद तहकीक इस नज़रिए को रद्द करती है। डॉक्टर J.M. किनोयर। हमने इन ढांचों का दोबारा जायजा लिया। ये किसी एक कत्लेआम के नहीं थे, ये मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक़ रखते थे। शहर में कहीं भी तबाही की कोई वाज़ेह तय नहीं मिली। आरियाई हमले का नज़रिया दरअसल नौआबादियाती दौर की एक गलत सोच था। तो फिर असल वजह क्या थी? मुमकिन है जवाब कुदरत में छुपा हो। वादिय सिंध की तहजीब दरिया के निज़ाम पर कायम थी, लेकिन ज़मीन की साख्त बदल रही थी। सैटेलाइट तस्वीर और जियोलॉजिकल तहकीक से पता चला कि घाघर हाकड़ा दरिया, जिसे अक्सर वैदिक मतून में सरस्वती कहा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगा। डॉक्टर लिवियो जियोसान, माहिर अर्जियात। दरियाए सिंध और उसके माविन दरिया हमेशा मुतहर्रिक रहे हैं। किसी बड़े ज़मीनी झटके ने उनका रास्ता बदल दिया होगा। अगर एक बड़ा दरिया खुश्क हो जाए तो ज़राअत पर मुनहसर तहजीब के लिए ये एक तबाहकुन सूरत हाल होती है। ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को नकल मकानी पर मजबूर कर देता है। इसी दौरान मौसम भी बदलने लगा। तकरीबन 2200 क़ब्ल मसीह के बाद मौसम ज़्यादा खुश्क होने लगा। मॉनसून की बारिशें कम हो गईं। सदियों तक कामयाब रहने वाली तहजीब अब माहौल के खिलाफ लड़ रही थी। लेकिन वो अचानक गायब नहीं हुए, उन्होंने खुद को ढाल लिया, उन्होंने हिजरत की। शहर ख़त्म हुए मगर लोग जिंदा रहे। उनकी सकाफत, ज़राअत, दस्तकारी और पानी से मोहब्बत बाद की जनूबी एशियाई तहजीबों में शामिल हो गई। खामोश स्फिंक्स की मीरास। आज मोइंजो-दड़ो और हड़प्पा के टीले एक खामोश यादगार की तरह खड़े हैं। ये एक अजीब तज़ाद हैं। इन्होंने शहर बनाए, लेकिन हमें बादशाहों के नाम नहीं दिए। इन्होंने फ़न तख्लीक किया, लेकिन हमें ऐसा पत्थर नहीं दिया जिससे हम उनकी तहरीर पढ़ सकें। इन्होंने दूर दराज तिजारत की, लेकिन फतूहात के लिए तलवार नहीं उठाई। वादिय सिंध की तहजीब कांसी दौर की खामोश स्फिंक्स है। ये हमें बताती है कि शायद तहजीबें सिर्फ जंगों और बादशाहों से नहीं बनती। शायद एक ऐसी दुनिया भी मुमकिन थी जहां ताकत इज्तिमाई हो, दौलत मुश्तरका हो और अमन मामूल हो। और इसी खामोशी में ये तहजीब हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। आज भी वादिय सिंध का रस्मुल ख़त पढ़ा नहीं जा सका, और इस तहजीब के 90% से ज़्यादा मकामात अभी तक खुदाई के मुंतज़िर हैं। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। शायद किसी दिन इन मिट्टी के टीलों में छुपे आखिरी राज भी सामने आ जाएं और वादिय सिंध के खामोश लोग आखिरकार हमसे बात करें।